Good evening, everyone. Warm welcome to your own platform, Exam Norm. I welcome you all in the next session. We call it as Finance Norm. And today we will be covering all the important finance current affairs from 28th to 30th of June. I'm pretty sure this session is going to be really very helpful for all those candidates who are preparing for different regulatory bodies exam, as well as it is going to help the candidates who are in near future going to appear for the SBI as well as IBPS PO examination. I'm pretty sure you guys have seen the notification for SBI and IBPS PO. They have clearly mentioned that now the RBI circulars are important, but the level, the depth which can be asked in the bank exams is pretty different. So we will be catering them as well. So before I start with the discussion, give me yes sir in the comment section so that we can begin without any further delay. And today's session is going to be really very important as we have 4 circulars or 4 news from the RBI website itself which we will be covering in today's session. एक बार मुझे comment section में बता दीजिए that I'm audible, give me a thumbs up, everything is fine, so that we can start the discussion without any further delay. एक बार मुझे बता दो so that we can begin the discussion without any further delay. Quickly everybody. As I have told you that now this session is not only going to help you in your upcoming RBI Grade B 2027 exam alone, it will help you in the SEBI Grade A examination, as well as up to an extent some of the news can be asked in the NABARD Grade A examination as well. And most importantly, this session will be now helpful for your upcoming IBPS PO as well as SBI PO examination as well. और मैं plan कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसा लेके आऊँ which can help you guys if you are preparing for SBI and IBPS PO. Do let me know in the comment section after watching this session if you think that yes, I could help you with the RBI circulars for your SBI PO and IBPS PO examination. Do comment in the comment section. And as we have promised, this channel is just not to help you to clear RBI examination, rather it is your channel where we will be helping you to at least you should clear, you should achieve your aim, you should achieve your goal. ठीक है, तो उसी थॉट के साथ, उसी प्लानिंग के साथ आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ दिस एस्पेक्ट. तो प्लीज मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट मी टू स्टार्ट विद दीज काइंड ऑफ सेशंस एज वेल. ठीक है, चलो here we go with the first news of the day without any further delay. तो अगर हम पहली न्यूज की ओर बढ़े तो आज की जो हमारी शाम की पहली न्यूज है वो क्या है? सर, द फर्स्ट न्यूज इज बेसिकली a news which can be helpful for the candidates who are going to write down the phase 2 examination, as well as the news which I'm going to discuss right now is going to be helpful for the candidates who are going to write down the NABARD examination, because the current news which I'm going to discuss, the first one is more of data oriented which can be asked directly in the upcoming examinations to go. ठीक है, तो देखते हैं जरा ये न्यूज क्या है, कैसा क्वेश्चन इस न्यूज से फ्रेम किया जा सकता है. वी विल बी डिस्कसिंग दैट एज वेल. तो शेड्यूल बैंक स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन इन इंडिया. तो अभी रिसेंटली देयर हैज बीन एन अनाउंसमेंट रिलेटेड टू शेड्यूल बैंक स्टेटमेंट. शेड्यूल बैंक स्टेटमेंट का मतलब कि भैया क्या हालत है शेड्यूल बैंक्स की, हाउ वेल दे आर परफॉर्मिंग. एक्चुअली द डेटा रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर न्यूज was presented by RBI on 15 जून. लेकिन 15 जून का जो डेटा था ऑब्वियसली वो पुराना हो चुका है. मैं उसमें क्यों बात कर रहा हूं, उसका रीजन है कि रिसेंटली ऑन 29th of June अगेन अपडेट वाज देयर विद रिस्पेक्ट टू द सेम डेटा. तो जब एक ही डेटा पे 2 बार अपडेट आ जाए और वो भी आरबीआई की वेबसाइट में, तो यहां से क्लियर हो जाना चाहिए कि भैया ये डेटा इंपॉर्टेंट है और अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया वी शुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर इट. तो ये पहली बार मैंने डेटा इंटेंशनली इग्नोर किया कि काफी टफ डेटा है, काफी बल्कि डेटा, वी शुड नॉट गिव टू द स्टूडेंट्स. बट अब अगर एक ही न्यूज को 2 बार आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पे प्रेजेंट किया तो अनडाउटेडली दिस डेटा हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन मैंने इस डेटा को काफी मिनिमाइज किया सो दैट यू कैन रिमेंबर इट, सो दैट यू कैन आंसर द क्वेश्चंस इफ इट विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन टू गो. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इफ आई स्टार्ट माय डिस्कशन, द फर्स्ट वन इज Reserve Bank of India has released the scheduled bank's statement of position
on 15 June, providing a snapshot of the balance sheet of the Indian banking system. We are not going to learn the balance sheet. We are just going to identify the major initiatives, the major changes which have been done. सबसे पहली चीज है सर deposit. Obviously, the scheduled bank's deposit is strong. So if I talk about the total deposit, but excluding the interbank deposit का मतलब SBI का पैसा PNB में, PNB का पैसा SBI में, उसे हम exclude करेंगे. अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये इंटरबैंक डिपॉजिट्स की क्या जरूरत है, व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द एक्चुअल एजेंडा बिहाइंड दिस इंटरबैंक डिपॉजिट. देन माय आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वुड बी, गाइस एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं. मान लो एसबीआई का एटीएम है, दैट इज ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एंड द कस्टमर बिलोंग्स टू पीएनबी. तो वो पीएनबी का डेबिट कार्ड लेकर एसबीआई की मशीन पे गया और वहां से पैसा विड्रॉ कर लिया. सिमिलरली देयर इज अ एटीएम ओन्ड बाय पीएनबी, वहां पे एसबीआई का कस्टमर गया डेबिट कार्ड लेकर और उसने अपना कार्ड स्वाइप किया और पैसा विड्रॉ कर लिया. अब इन दोनों ही केसेस में फंड्स आर बेसिकली प्रोवाइडेड बाय एसबीआई टू द कस्टमर ऑफ पीएनबी, and here the funds are provided by PNB to the customer of SBI, and later on every bank needs to make the net settlement कि भैया PNB ने जो दिया on the behalf of SBI वो SBI से लेगा, और जो SBI ने दिया on the behalf of PNB it will be taking it from the PNB again. But अब इस पूरे settlement के केस में there is a need कि this settlement should be done in an appropriate manner, it should be done in an easy manner. तो उस केस में एक solution निकल के आया. वो solution क्या है सर? according to RBI, RBI has asked the scheduled banks of the country, RBI has asked the scheduled banks of the country कि भैया आप क्या करो, कुछ खास नहीं है कि हर एक बैंक हर दूसरे बैंक में एक डिपॉजिट अकाउंट मेंटेन करेगा, और ये जो डिपॉजिट अकाउंट मेंटेन किया जाएगा इन द अदर अकाउंट और इन द अदर बैंक बाय द अदर डिपॉजिट अकाउंट विच विल बी मेंटेन्ड बाय अदर बैंक इन अ बैंक इटसेल्फ. तो उस अकाउंट के फंड्स को ना तो लोन पे दिया जाएगा, यानी कि एसबीआई इस डिपॉजिट को, जो पीएनबी का डिपॉजिट है, ना तो उसे लोन पे देगा और ना ही इस डिपॉजिट के ऊपर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा. और इसी डिपॉजिट को क्या कहा जाता है? इंटरबैंक डिपॉजिट कहा जाता है. और यही जो इंटरबैंक डिपॉजिट है, इस इंटरबैंक डिपॉजिट को इंक्लूड नहीं किया जाता while we are making these calculations, because these interbank deposits, they are not going to be utilized or they are not going to be floated into the public again, they are going to be maintained in the banking sector itself. ठीक है जी, क्लियर हुई ये बात. अब इसको अगर मैं देखूं तो जो टोटल डिपॉजिट्स हैं excluding the interbank deposits of all scheduled banks, it has stood at a value of 2,63,000 crores compared to 235 lakh crores in the month of June 2025. तो जून 2025 के मुकाबले जून 2026 में जो इंडिया का डिपॉजिट्स है विद द शेड्यूल्ड बैंक्स, दैट हैज इंक्रीज्ड बाय 12%. दैट हैज इंक्रीज्ड बाय 12%. लेकिन अगर मैं बात करूं मई 2026 में, तो सर मई 2026 में दिस डिपॉजिट वाज 265 लाख करोड़. तो उसके हिसाब से जून मंथ में कम हुए, लेकिन वी आर नॉट वरिड अबाउट दिस मई मंथ. इट इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस. याद करने की जरूरत नहीं है. जो हम कंपैरिजन याद करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू जनवरी मंथ ओनली, सॉरी दैट विल बी रिलेटेड टू जून मंथ ओनली. ठीक है. अब सर डिपॉजिट का कॉम्पोजिशन, सर कॉम्पोजिशन क्या है? डिमांड डिपॉजिट 32 lakh crore rupees, about 12% of the total deposit, and time deposit is around 87% of the total deposit, which indicates fixed deposit continue to dominate the bank's liability profile. Bank's liability profile का बड़ा सिंपल सा मतलब है सर. वो मतलब क्या है कि सर बैंक के पास जो डिपॉजिट एक्चुअली वो बैंक की लाइबिलिटी है, और अगर हम बैंक की लाइबिलिटी की बात करें तो भैया इस लाइबिलिटी के ऊपर बैंक का जो मेजर लाइबिलिटी एरिया है दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट? सो दैट कम्स under the category of none other than what sir? It comes under the category of liability. ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, समझ आ गया पॉइंट. इफ दिस पॉइंट इज क्लियर गिव मी यस सर. इफ दिस पॉइंट इज क्लियर गिव मी यस सर, सो दैट आई कैन मूव अहेड. अगर यहां तक ये पॉइंट क्लियर है, समझ आ गई हो सारी बात, तो एक बार यस सर टाइप कर दो सो दैट आई कैन मूव अहेड. आई एम प्रीटी श्योर each and every point which I have just discussed is crystal clear. समझ आया होगा, मजा आया होगा. Now I will be moving ahead. तो याद क्या करना है सर? सिर्फ 2-3 चीजें
जो मैंने आपकी स्क्रीन पर लिखी है वही हमें याद करनी है, इससे ज्यादा कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है। एक तो ये कि टोटल डिपॉजिट क्या है, दूसरा पॉइंट ये कि सर जो हम टोटल डिपॉजिट की बात कर रहे हैं उस टोटल डिपॉजिट में डिमांड डिपॉजिट कितना है और पिछले साल के मुकाबले जो आपका टोटल डिपॉजिट है वो कितना ग्रो हुआ। बस इससे ज्यादा कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा कुछ और हमें समझने की पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, समझ आ गया पॉइंट, डन है। शैल आई मूव अहेड, चलो अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है वो देखना जरा ध्यान से। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज अ बैंक क्रेडिट। अब अगर हम बैंक क्रेडिट यानी बैंक लोन की बात करें तो बैंक ने जो टोटल क्रेडिट दिया, जो टोटल लोन दिया, दैट हैज इंक्रीज टू 2,20,000 लाख करोड़ रुपीज, 220 lakh crore rupees, and this represents the increase around 17.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो भैया अगर हम बात करें डिपॉजिट की तो सर डिपॉजिट कितना इंक्रीज हुआ? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंक्रीज इन डिपॉजिट्स, तो सर जो डिपॉजिट इंक्रीज हुआ शेड्यूल बैंक्स के पास दैट इज 12%, और अगर मैं बात करूं क्रेडिट की तो सर जो क्रेडिट इंक्रीज हुआ वो कितना 17.4%, यानी कि क्रेडिट ग्रोथ इज ग्रेटर देन डिपॉजिट ग्रोथ, जो कि पॉइंट ऑफ वरी है जिसके ऊपर हम काफी बार बात कर चुके हैं। तो यहां पे फिर से एक डेटा दे दिया सो दैट यू कैन रिमेंबर इट। अगला पॉइंट कहता है सर क्रेडिट ऑल्सो रिकॉर्डेड द स्लाइट इंक्रीज ओवर द मे मंथ। तो मे मंथ का डेटा सिर्फ और सिर्फ समझ के लिए है क्योंकि आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पे दिया था तो मैंने यहां रख लिया, लेकिन हमें याद करने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कॉम्पोजिशन क्रेडिट की। अब अगर हम क्रेडिट की बात करें यानी कि लोन, अब लोन जो है सर वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में दिया जाता है। फॉर एग्जांपल वी हैव टर्म लोन, फॉर एग्जांपल वी हैव कैश क्रेडिट, फॉर एग्जांपल वी हैव ओवरड्राफ्ट लिमिट्स, एंड इवन वी हैव द बिल डिस्काउंटिंग एंड व्हाट नॉट। तो इन सबको अगर हम इंक्लूड करें तो यहां पे अगर हमसे कोई पूछा जाए कि बैंक जो सबसे ज्यादा लोन है वो किस फॉर्मेट में देता है, वो किस पर्पस के लिए देता है, तो सर लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट continue to account for overwhelming majority of the bank lending, लेकिन bill purchase and discounted constituted only a small share of total credit। ये बात समझ आती है, bill purchased and bill discounted। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। सर लेट्स सपोज एक कंपनी है इन्फोसिस ने प्रोडक्ट परचेज किया फ्रॉम लेट्स से महिंद्रा। तो महिंद्रा ने जो प्रोडक्ट दिया उसके बदले में जब पैसे लेने की बारी आई तो इन्फोसिस से एक इनवॉइस इशू हुआ। महिंद्रा ने इनवॉइस इशू किया कि भैया जो आपने गाड़ियां खरीदी अपने एम्प्लॉइज के लिए उसका इनवॉइस ये रहा। अब इन्फोसिस ने कहा सर अभी तो पैसा नहीं है, फ्यूचर में दे देंगे। तो कहते कोई बात नहीं, इस इनवॉइस के ऊपर साइन कर दो। द मोमेंट दिस इनवॉइस हैज बीन साइंड इट बिकम्स अ बिल, या फिर ये कहो कि इन्फोसिस rather than paying the funds, Infosys has issued an instrument, we call it as commercial paper, even we have the commercial bills। अब ये जो कमर्शियल पेपर या कमर्शियल बिल इशू किया गया बाय इन्फोसिस, अगर महिंद्रा को आज ही पैसों की रिक्वायरमेंट है, महिंद्रा कैन गो टू बैंक लाइक एसबीआई एंड इट विल बी सेलिंग दिस कमर्शियल बिल टू द बैंक एंड बैंक विल बी डिस्काउंटिंग दिस पर्टिकुलर बिल। तो एक्चुअल में क्या हुआ सर, महिंद्रा ने जो लोन दिया था इन्फोसिस को, अब वही लोन उन्होंने ट्रांसफर कर दिया एसबीआई को और अपना पैसा लेकर अपना काम कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। तो यहां पे ये पॉइंट हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो क्या कि सर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ credit facility provided by the banks, but their composition or their I would say their share among the total lending of the bank, among the total credit of the bank is pretty low in comparison to the other side. We have cash credit, we have overdraft, as well as we have the term loan. Now if I talk about the investments, the bank investment portfolio has increased to 72.52 लाख करोड़। सब क्वेश्चन आता है कि सर ये कहां से आया, ये पैसा कहां से आया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बैंक के पास जो टोटल डिपॉजिट रिकॉर्ड किया गया था, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ दैट टोटल डिपॉजिट, कोई बताएगा मुझे थोड़ा सा, अगर किसी को याद हो, अभी मैंने बताया। तो जब बैंक के पास जो टोटल डिपॉजिट रिकॉर्ड किया गया इन द मंथ ऑफ जून, दैट वाज 2,63,000 करोड़, दैट वाज 2,63,000 करोड़। और बैंक ने जो टोटल क्रेडिट दिया, बैंक ने जो टोटल क्रेडिट दिया, व्हाट इज दैट वैल्यू सर, उसकी वैल्यू है 2,20,000 करोड़ रुपीस,
2,20,000 crore rupees. Obviously, the gap between the deposit and loan will obviously go for what purpose, or it will be going for the investment purpose, as well as bank will be utilizing its capital, bank will be utilizing its own funds, bank will be utilizing the reserves maintained by the bank in the form of investment. तो बैंक उन reserves को, उस capital को, उस fund को भी invest करेगा to earn regular returns on that particular amount. तो वो जो total investment profile है banks की, that is scheduled commercial banks की, that is of value 72.52 lakh crore rupees. और अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहां होती है, तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है इन ऑर्डर टू मैनेज, इन ऑर्डर टू मेंटेन एसएलआर, दैट इज स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो, वेयर बैंक्स दे मेंटेन मोस्ट ऑफ देयर डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी दे इन्वेस्ट द डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. सो जो बल्क डिपॉजिट्स है, या आप कहो कि जो बल्क इन्वेस्टमेंट है बाय द बैंक, इट इज डन इन द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. अब अगर मैं आरबीआई बोरोइंग्स की बात करूं, so borrowings from RBI by the banks has reduced from 92,000 to 32,000 crores. ये point important reason, sir already market में liquidity अच्छी खासी है, banks के पास already funds का flow अच्छा है, liquidity is good enough, so there is no need to borrow the funds from RBI. तो अभी के लिए जो borrowings है, that is approximately 32,000 crores. अगर मैं cash and RBI balances की बात करूं, the bank has maintained in total around 79,000 crores in the form of cash with RBI. and अगर हम balances की बात करें, balances means the deposit accounts of the banks with the RBI, they have a total deposit value of 7.70 lakh crore rupees. They have a total deposit value of 7.70 lakh crore rupees. तो बैंक का इतना पैसा RBI के पास भी maintained है. ठीक है जी. अब इंटर बैंक positions की बात करूं, liability to the banking system increased due to higher interbank deposits. At the same time, borrowing from the other banks declined, suggesting greater resilience on deposit mobilization rather than interbank borrowing. तो इसका मतलब क्या हुआ? सर जो liability है to the banking system, it has increased. क्यों increase हुई है? So because of the increase in interbank deposits, but at the same time the borrowing done और द बोरोइंग डन बिटवीन द बैंक्स हैज डिक्लाइन, क्योंकि वही रिक्वायरमेंट नहीं है फंड्स की, तो वो बोरोइंग कम हो गई, लेकिन जो डिपॉजिट्स हैं वो बढ़ रहे हैं. दैट मींस द लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग अमंग द बैंकिंग सेक्टर रादर देन द एसेट. अगर मैं बैंक हूं, मैंने किसी को लोन दिया, तो ऑब्वियसली that is my asset. But if somebody has deposited its funds with me, that is a liability on me, and that is the reason interbank deposit बढ़ेगा, तो liabilities बैंक के ऊपर क्या होगी? बढ़ जाएंगी. Last but not the least is outstanding food credit. That means the loan given by the banks, food credit purpose, that is scheduled commercial banks 1.34 lakh crores and scheduled cooperative banks, that is 52,000 crore rupees. तो ये इसमें से ये वैल्यू आप याद रख लीजिएगा, nothing else is important. तो अगर आप इतनी वैल्यूज याद रख लेते हैं for your upcoming examination, you will be in a position to answer these questions, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा. और जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैंने नोटिस किया है कि अक्सर स्टूडेंट्स दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू आंसर इट. सो यू शुड बी प्रीटी रेडी कि अगर ऐसा क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आए, तो आई शुड बी एबल टू आंसर इट फॉर श्योर. ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट? इज दिस पॉइंट क्लियर? इफ इट इज क्लियर, जस्ट गिव मी यस सर. If it is clear, just give me yes sir, so that I can move ahead. Clear हो गया? Give me a thumbs up. कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. Sir, depository bank get interest on this deposit. Which deposit? Which deposit, सौरभ? अगर मैं बैंक हूं और एज अ बैंक मैंने पैसा डिपॉजिट किया है विद अदर बैंक, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ टू मैनेज द इंटरबैंक ट्रांजेक्शंस, तो उस अकाउंट डिपॉजिट्स पे कोई इंटरेस्ट पे बैक नहीं होगा, और इस पैसे को बैंक लोन पर भी नहीं दे सकता. इफ यू रिमेंबर, व्हेन वी कैलकुलेट द नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, how it is calculated? So it is gross demand and time liability of the banks. That means total deposit with the bank minus interbank deposit, because the interbank deposit is neither used for the purpose of lending and neither used for the purpose of lending, nor the interest is paid by the bank on the same. ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? मुझे लगता है समझ आया होगा. अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई परेशानी है, तो पूछ लो, वरना आई विल बी मूविंग अहेड. जब ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, तो मैंने अक्सर फील किया दैट स्टूडेंट्स
दे रन आउट ऑफ द बॉक्स कि सर ऐसे क्वेश्चन पे क्या आंसर करें, क्योंकि यहां से कॉन्सेप्चुअल एज वेल एज डेटा, कॉन्सेप्चुअल एज वेल एज डेटा ओरिएंटेड दोनों क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. बोथ द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. ठीक, डन. शैल वी मूव अहेड? Shall we move ahead? Give me a thumbs up. Chalo. Now let's solve a question on the same. The question says, consider the following statement regarding the schedule bank statement of position. Time deposit accounted nearly for 88% of the total deposit. Yes sir. अगर हम देखें तो जो हमारा टाइम डिपॉजिट है वो कितना परसेंट है? सो दैट इज 87.7%. दैट मीन्स 88% ऑफ द टोटल डिपॉजिट. सेकेंड इज द टोटल बैंक क्रेडिट has recorded year-on-year growth of 17%. On the other side, deposit has witnessed a growth of 12%. Borrowing of scheduled banks from RBI has decreased compared to the position as on 31st March. अब ये जो position है वो decrease क्यों हुई है? So because of increase in liquidity in the market, लगभग 1/3 हो गई है वो position in the month of June. So keeping that in mind, sir, only one and two statement is correct. So answer to this particular question would be A option, but the third statement is wrong because it has decreased, it has not increased. Clear, clear, clear. Chalo, take the screenshot of this question quickly. Take the screenshot of this question, and as I have promised in the previous session, भाई बल्कि पीडीएफ्स अब आपको नहीं मिलेंगी. 3 स्लाइड्स में पूरी न्यूज खत्म कर दी और एक एक पॉइंट बता दिया जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है. ठीक है. सो माय एजेंडा, माय टारगेट इज दिस इटसेल्फ कि इस बार अगर हम एग्जामिनेशन में बैठे तो हमारे पास फाइनेंस काफ़ी हैंडी हो और उसके जो नोट्स हैं वो काफ़ी हैंडी हो. पिछली बार मैंने बहुत चीज़ें एक्सप्लेन की ये सोचकर कि शायद वो एक्सप्लेनेशन अब आपको रिक्वायर्ड है, तो एक्सप्लेनेशन अब मैं क्लास में दूंगा, बट जो कंटेंट होगा दैट विल बी दैट मच ओनली जो आपको याद करना है. उसके अलावा कोई बकवास वहां पर नहीं होगी, कोई भी डिस्कशन, कोई भी डिटेल्ड फॉर्मेटिंग या डिटेल्ड वर्जन ऑफ द कंटेंट आपको नहीं दिया जाएगा. आई होप दैट विल बी फाइन. चलो जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इंडियाज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन फॉर मार्च 2026 which has been released in the month of June 2026. To be very precise, it has been released on 29th of June. अब किसी को ना पता हो तो मैं उसे बता दूं कि ये है क्या. सर अगर मैं बात करूं इंडियाज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन की, तो इंडिया की इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन में दो चीजें हैं. पहला पॉइंट है सर Indians holding assets outside India. Indians holding asset outside India मतलब जो assets हैं, foreign assets हैं, which are owned by Indians. On the other side, foreigners holding asset in India. अब जो foreigners की asset है इंडिया में, मतलब अगर मान लो कि मेरी एक कंपनी अगर मैं एग्जाम नॉर्म के कुछ शेयर्स बेच देता हूं और वो खरीदने वाला यूएस का सिटीजन है, लेट्स से डोनाल्ड ट्रंप हैज इन्वेस्टेड और एलन मस्क हैज इन्वेस्टेड इन माय कंपनी, सो द इन्वेस्टमेंट डन by them is obviously the investment done in my company, but that investment is liability on the entire country. Why it is liability? Because sir, in near future when they will be disinvesting from my company, India will be responsible or the government will be responsible to pay them in foreign currency. Because मुझे तो वो पैसा रुपीज में मिला था, मैं रुपीज में पे आउट करूंगा, लेकिन जब उन्होंने इंडिया में पैसा अपना इन्वेस्ट किया था, they have converted dollars into rupees and now they are converting rupees back into dollars, so that will become liability on the government. So what is this net international investment position? So this net international investment position basically means that what is the total or what is the net asset owned by Indians. तो इसमें हम क्या कहेंगे, net international investment position is equals to foreign assets owned by Indians minus Indian assets owned by foreigners. अब क्या है कि सर जब हम इसे सॉल्व करते हैं वी गेट अ नेगेटिव वैल्यू. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेगेटिव वैल्यू? सर नेगेटिव वैल्यू का मीनिंग ये है कि इंडियंस की जो एसेट्स हैं, इंडिया की जो एसेट्स हैं आउटसाइड इंडिया, दैट इज लेस इन कंपैरिजन टू द एसेट्स ओन्ड बाय फॉरेनर्स इन इंडिया. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं नेट इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन की बात करूं, आई रिपीट, दैट इज द foreign assets owned by Indians
माइनस इंडियन असेट्स ओन्ड बाय फॉरेनर्स। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या होगा कि सर मान लो किसी फॉरेनर ने इंडिया में लोन दिया या फिर किसी फॉरेनर ने इंडिया में पैसा इन्वेस्ट किया, दैट विल कम इन दिस कैटेगरी। और अगर इंडियंस ने बाहर किसी कंट्री में इन्वेस्ट किया, कोई लैंड ओन किया, दैट विल कम इन दिस कैटेगरी। लेकिन इंडिया का जो इंडियंस की असेट है आउटसाइड इंडिया, दैट इज लेस देन what has been owned by foreigners in India, because of which the net answer of this calculation is negative. तो अगर हम इस नेगेटिव वैल्यू पे ही बात करें तो सर ये जो नेगेटिव वैल्यू है, इट हैज इंप्रूव्ड इन मार्च 2026, एंड इन मार्च 2026 इट हैज इंप्रूव्ड टू $209 बिलियन। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि सर ये नेगेटिव है तो इसमें इंप्रूवमेंट क्या हुआ। सर इसमें इंप्रूवमेंट जो है दैट इज इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वैल्यू। अगर हम प्रीवियस वैल्यू की बात करें इन द मंथ ऑफ डिसंबर 2025, in the month of December 2025, this net owned value was minus $262.3 billion. minus $262.3 billion। तो यहां पे अगर हम ध्यान से चेक करेंगे तो ऑब्वियसली सर जो इंडिया की लाइबिलिटी है दैट हैज डिक्रीज, बिकॉज द फॉरेन assets, the assets owned by foreigners in India, it is basically liability on the country, and this liability was minus 262, which has decreased to $209 बिलियन डॉलर्स। दिस इज समथिंग विच यू नीड टू रिमेंबर। तो यहां पे ये पहला जो डेटा मैंने लिखा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद करना है। अगला, दिस रिप्रेजेंट्स दैट वी हैव विटनेस एन इंप्रूवमेंट ऑफ $52.4 बिलियन। बेसिक कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हैं। During the entire financial year, the net claim of non-resident on India declined by $119.2 billion। मतलब क्या हुआ कि सर अगर आप इसे कंपेयर करेंगे, अगर आप इसे कंपेयर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द डेटा, अब मैं अगर यहां पे ये जो डेटा मार्च 2026 का है, अगर यहां से मैं डेटा निकालना चाहूं मार्च 2025 का, तो सर अगर आप उससे कंपेयर कर रहे हैं तो उसके मुकाबले दिस हैज बीन रिड्यूस्ड बाय $119 बिलियन। $119 बिलियन का मतलब क्या हुआ सर, इट वाज अर्लियर 328 बिलियन डॉलर्स। तो भैया ये $328 बिलियन नेगेटिव था मार्च 2025 में, फिर वहां से कम होकर $262 बिलियन हुआ, अब वहां से कम होकर ये कितना हुआ, दैट इज $209 बिलियन, विच इज अ गुड साइन, विच इज अ इंप्रूविंग साइन, विच इज शोइंग एन इंप्रूवमेंट कि इंडिया की जो लाइबिलिटी है या फॉरेन लाइबिलिटी ऑन इंडिया इज रिड्यूसिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है जी। अब इसके अलावा 2-3 पॉइंट्स और हैं जो हम देखना चाहेंगे। अगला पॉइंट है सर, द इंप्रूवमेंट इन इंडियाज आईआईपी वाज ड्यू टू 2 मेजर डेवलपमेंट्स। सर वो 2 रीजंस क्या हैं। पहला, इंडियाज ओवरसी फाइनेंशियल असेट्स इंक्रीज्ड बाय $12.3 बिलियन। मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये है कि सर ये जो आपने वैल्यूज लिखी हैं स्क्रीन पर, आप कह रहे हो कि सर इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, दैट हैज डिक्रीज्ड। इन दोनों के बीच में जो गैप है दैट हैज डिक्रीज। अब ये जो गैप है, हाउ इट विल डिक्रीज सर, इट विल डिक्रीज ओनली इफ अगर हम कहें कि सर ये जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है और दूसरी तरफ ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तभी ये जो नेगेटिव वैल्यू है वो पहले के मुकाबले क्या होगी, डिक्रीज होगी। तभी ये नेगेटिव वैल्यू पहले के मुकाबले डिक्रीज होगी। तो अगर मैं कहूं कि एक तरफ इंडिया की जो असेट है इन द फॉरेन नेशंस, इट हैज इंक्रीज्ड in the last quarter of financial year 2025-26, एंड जो इंडिया की लाइबिलिटी है या जो फॉरेन असेट्स है इन इंडिया, या फिर जो लाइबिलिटी है ऑफ इंडियंस ड्यू टू द फॉरेन ओन्ड असेट्स, दैट हैज आल्सो डिक्रीज्ड। अब वो कैसे डिक्रीज हुआ सर, हम जानते हैं कि इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, चाहे फिर वो शेयर्स बेचे गए, एफपीआई आउटफ्लो हुआ, सो दैट डिसइन्वेस्टमेंट हैज लेड टू द नेट आउटफ्लो ऑफ द फंड्स। तो अगर फ्लो होगा आउटफ्लो, तो हमारा जो नेट आउटफ्लो होगा तो हमारी जो लाइबिलिटीज है दैट विल अनडाउटेडली फॉल डाउन। सो दिस हैज फॉलन डाउन बाय $40.1 बिलियन एंड दिस हैज इंक्रीज बाय $12.3 बिलियन, जिसकी वजह से जो ओवरऑल चेंज है, दैट ओवरऑल चेंज इज सम ऑफ द बोथ, दैट इज अराउंड $52.4 बिलियन। दैट इज $54.2 बिलियन। तो एक तरफ ये कम हो गया लाइबिलिटी और दूसरी तरफ असेट्स बढ़ गई। असेट बढ़ने का मतलब इंडियंस ने जो पैसा है वो इन्वेस्ट किया आउटसाइड द कंट्री। इंडियंस हैव परचेज मोर
आई वुड से फॉरेन असेट्स, इंडिया ने ज्यादा शेयर्स खरीदे, ज्यादा लैंड खरीदा, ज्यादा कंपनीज खरीदी आउटसाइड इंडिया. इंडियन कंपनीज दे हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया, जिसकी वजह से दिस वैल्यू हैज इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली. ठीक है जी, क्लियर होगी ये बात, समझ आ गया पॉइंट? इफ इट इज क्लियर जस्ट गिव मी यस सर. If it is clear, just give me yes sir. So this is important. अब ये तो है डेटा फॉर द लास्ट क्वार्टर और ये डेटा है फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर. इफ यू आस्क मी which डेटा इज इंपॉर्टेंट, सर टेक्निकली बोथ द डेटाज आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट इफ यू वांट टू रिमेंबर यू कैन रिमेंबर द फाइनेंशियल ईयर डेटा रादर देन द क्वार्टरली डेटा. तो क्वार्टरली डेटा तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करना है तो फाइनेंशियल ईयर डेटा याद करो, नहीं करना आई एम ओके विद इट, देन ऑल्सो इट्स फाइन, नथिंग टू वरी. ठीक है जी. The fall in liability was largely influenced by depreciation of Indian rupees against US dollar, which reduced US dollar value of foreign investment in India. ये पॉइंट समझ आया? ये पॉइंट समझ आया? ये पॉइंट क्या कह रहा है कि सर मान लो एक यूएस इन्वेस्टर है, he has invested $100 in India, ठीक, and against this $100 he has received 100 rupees each dollar. That means he has invested 10,000 rupees in the country. He has invested 10,000 rupees in the country. The asset value is 10,000. अब क्या हुआ कि सर ये जो asset value है, it has, चलो मान लो कि इसकी value increase हो गई and its value has increased to 11,000. Its value has increased to 11,000. But today, when the value has increased to 11,000, Indian currency has depreciated, and due to this depreciation, now Indian currency has come down to a value 120 rupees per dollar. And now if it is 120 rupees per dollar, then it's quite obvious. It's quite obvious. If I'm going to disinvest my investment, if I'm an investor and I'm going to disinvest my investment, then I will be getting around $99, or my actual investment value will fall down to $99 or maybe less than that, depending upon the depreciation of currency. तो एक बार आप मल्टीप्लाई कर लेना, मेरा कॉन्ट थोड़ा सा वीक है, तो अगर मैं 1100 को डिवाइड करूंगा विद 12 तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 91.6. That is 91.6. इसका मतलब the value of investment which was earlier $100 billion in India, its value has increased, but due to the decrease in or due to the depreciation of currency in international currency, its value has decreased. तो एक तरफ आप देखो एक्चुअल में जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी उसकी वैल्यू इंडिया में तो इंक्रीज हुई है, लेकिन इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट होने की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट का जो इंटरनेशनल करेंसी में वैल्यू है दैट हैज फॉलन डाउन. एंड ड्यू टू दिस decrease, what happened, sir? Earlier India's liability was $100. Now the India liability is $91 billion, which means the liability has reduced. So what is the reason behind the liability decrease? So one of the important reason, along with increase in Indian investment, increase in India's investment outside or India's investment in foreign countries, along with decrease in foreign, along with decrease in foreigners asset in India. Along with this, what has supported a lot, so that is depreciation of currency. तो इन तीन कारणों की वजह से जो गैप है that has reduced from $300 billion to $262 billion, and now this gap has reduced only and only to a value of $209 billion, which is again important for your upcoming examination. ठीक है जी. अब इसमें अगर हमसे को पूछे कि सर इंडिया में जो इंक्रीज हुआ, द वे वी आर सेइंग दैट देयर इज एन इंक्रीज इन इंडियन इन्वेस्टमेंट outside India or Indian investment in foreign countries, what overall investment has increased? So first of all, so this value, which we call it as, I'll say in this manner, foreign assets owned by Indians. तो ये जो foreign assets owned by Indians हैं, उनमें सबसे पहली चीज क्या है सर? दी इन्वेस्टमेंट डन बाय इंडियंस, है ना. उसके अलावा दी फॉरेक्स रिजर्व्स विद द कंट्री, उसके अलावा वी हैव दी अदर इन्वेस्टमेंट्स एज वेल एज दी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. तो आपको जान के थोड़ा अच्छा लगेगा वो क्या कि सर अगर हम देखेंगे ये जो इस बार इंक्रीज हुआ है,
the value which we have witnessed an increase, so it has contributed more than 60%. और ये 60% का contribution कहाँ से आया? That is investment. Means Indian companies, they have increased their investment outside India, and due to that increase in their investment outside India, this foreign asset owned by Indians has increased, and due to the increase in foreign assets owned by Indians, that has resulted in decrease in this negative value. तो अगर हमसे कोई पूछे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल जो हमारे पास रिजर्व्स है और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, लेकिन इन द मंथ ऑफ और इन द लास्ट क्वार्टर उसमें सबसे ज्यादा जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है दैट हैज इंक्रीज इन ओवरसीज इन्वेस्टमेंट. ये पॉइंट को ध्यान से समझ लो. मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर मैं कहूं कि इंडिया का जो फॉरेन असेट ओन्ड बाय इंडियंस हैं उनमें जो सबसे बड़ा शेयर है मोर देन 50%, दैट इज विद foreign reserves which we have, that is with foreign reserves which we have, but in last quarter, but in quarter 4 increase in overseas direct investment. Overseas direct investment का मतलब Indian investors investing outside India or investing in foreign countries, that was highest and that has contributed 60% to the overall quarter increase. तो पूरे क्वार्टर में अगर मान लो 100 वैल्यू इंक्रीज हुई है, $100 इंक्रीज हुए, तो उसमें से $60 कहां से आए हैं? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विच हैज बीन डन बाय द इंडियंस. ये पॉइंट क्लियर हो गया? अगर ये क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप. अगर यहां डाउट है तो 12 पूछ लो. लेकिन अगर हम ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम द रिजर्व एसेट्स. अब इंडिया की जो असेट टू लायबिलिटी रेशियो है, असेट टू लायबिलिटी रेशियो का मतलब असेट which is foreign asset owned by Indians, foreign asset owned by Indians divided by Indian assets owned by foreigners. तो इसका जो रेशियो है that has improved to 85.2%, which means out of 100 rupees, अगर $100 की हमारी लाइबिलिटी है तो उसमें 85.2 रुपीज हमारे पास, $85.2 हमारे पास असेट भी है. अर्लियर इट वाज 82%, अर्लियर इट वाज 77.5%, which shows that yes, it is improving, and that too in an good manner, that too in an acceptable manner. ठीक. अब अगर मैं डेट लाइबिलिटीज की बात करूं तो डेट लाइबिलिटीज आर कंटिन्यू टू इंक्रीज. मींस जो पैसा हम बाहर से बोरो कर रहे हैं या जो पैसा इंडिया में इन्वेस्ट हो रहा है, बोथ ऑफ देम आर दी लाइबिलिटीज, बट द बोरोइंग पार्ट इज मेजर. कि हम बोरो ज्यादा कर रहे हैं, पैसा मांगने ज्यादा चले जाते हैं, भैया प्लीज अल्लाह के नाम पे हमें कुछ और लोन दे दो. वो जो लोन हम मांगने जा रहे हैं वो ज्यादा इन कंपैरिजन टू द इन्वेस्टमेंट विच वी आर रिसीविंग इन द कंट्री. तो वो जो रेशियो है, वो रेशियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप उस रेशियो को चेक करेंगे तो वो रेशियो क्या है सर? टोटल का मोर देन 50%, विच मीन्स अगर हम देखें कि 56.6% इज लाइबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ डेट एंड रेस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट. मतलब अगर फॉरेन कंपनी ने इंडिया में इन्वेस्ट किया that is 43.4%, लेकिन फॉरेन कंपनीज ने जो इंडिया में लोन दिया that is 56.6%. that is what I'm trying to say, that is what I'm trying to refer over here. Last point is sir, external asset and liability relative to GDP. अगर हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल असेट की बात करें, the international financial asset of the country has increased from 30% of GDP to 32.9% of GDP. लेकिन जो हमारी external financial liability है that has decreased but it is still high, that is 38.8%. कुछ खास नहीं है सर. ये जो values का difference था जो मैंने बताया था कि the value difference is $209 billion. अगर इसे मुझे कैलकुलेट करना हो तो I can write it like this. So this is equals to 32.9% of GDP. This is the foreign assets owned by Indians minus 38.8% of GDP, that is the Indian assets owned by foreigners. तो ये जो वैल्यू आई अगेन नेगेटिव, दिस नेगेटिव वैल्यू विल बी इक्वल्स टू द एक्चुअल वैल्यू जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई है, दैट इज $209 बिलियन. इस तरह से आप इस रिजल्ट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं. ठीक है जी. तो एज अ रिजल्ट जो नेट IIP टू GDP रेशियो है यानी कि $209 बिलियन divided by GDP, what is it? So it has improved significantly. Now it is 5.9
परसेंट वाई इट इज नेगेटिव, क्योंकि सर ये वैल्यू नेगेटिव है तो यहां से नेगेटिव साइन कॉपी हो गया, वरना हम भी जानते हैं परसेंटेज कभी नेगेटिव में नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ साइन है विच इज गिविंग अस द persona that it is in the negative sense that we have more liability than the asset value. क्लियर है, समझ आ गई बात? मुझे नहीं लगता कि एक भी डेटा जो मैंने इस न्यूज़ में लिखा है वो आपको ना समझ आया हो, और मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा डेटा आपके लिए लिखा है, बहुत ही चुना हुआ, बहुत ही आइडेंटिफाइड डेटा आपके लिए प्रेजेंट किया है, सो दैट यू कैन रिमेंबर इट, सो दैट यू कैन आंसर इट इन दी अपकमिंग एग्जाम्स टू गो. डन, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. द क्वेश्चन इज नाउ ऑन योर स्क्रीन. द क्वेश्चन सेज इंडियाज नेट इन्वेस्टमेंट position improved to $209.9 billion at the end of March 2006. Yes, sir. In the month of, or in the end of December 2025, this value was $52 billion more. अगर मैं 52 इसमें ऐड करूं तो it comes out to be around 262 billion dollars. $262 billion. एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कुछ गलती तो नहीं है. $262 billion, that is correct. ठीक है, अगला पॉइंट. The improvement in the net IIP during fourth quarter was driven by the increase in India's overseas financial asset. Yes, sir. That has contributed 60%. इंडिया की जो ओवरसीज फाइनेंशियल एसेट है दैट हैज इंप्रूव्ड, एंड उसमें भी जो सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ दैट इज बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और देयर इज अ डिक्लाइन इन द फॉरेन लायबिलिटी. ट्रू. Reserve assets constituted the largest component of India's international financial liabilities. So reserve assets constituted the largest component of India's international financial asset. It's not liability. अरे भैया जो हमारे पास फॉरेन करेंसी पड़ी है that is our asset ना, it's not our liability. So if it's our asset it cannot be true. So answer to this particular question is again 1 and 2 are correct but the third statement is wrong. Are you getting my point? अरे भाई आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्यों ये पॉइंट गलत है? क्योंकि जब हम बात करते हैं वैल्यूज की तो जो पैसा हमारे पास पड़ा है इन द फॉर्म ऑफ करेंसी दैट इज आवर एसेट. वो हमारी लायबिलिटी थोड़ी ना, वो तो फॉरेन कंट्रीज के लिए लायबिलिटी है बिकॉज दे आर लायबल टू पे अगेंस्ट दोज अमाउंट्स विच आर मेंशन्ड, अगेंस्ट दैट अमाउंट विच इज मेंशन्ड, है ना? दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट ओवर हियर. डन गाइस, समझ आ गया? शैल आई मूव अहेड? ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी होमवर्क. टेक द स्क्रीनशॉट. ये वो डेटा है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट यू शुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन. Once you have taken the screenshot, give me yes sir, I will be moving ahead. Done. ठीक है. अभी recently there was a news that RBI has launched one new survey, and what is that survey all about? और इस बार ये सर्वे काफी इंपॉर्टेंट है. आज तक मैंने ये सर्वे कभी नहीं पढ़ाया लेकिन इस बार पढ़ा रहा हूँ. रीजन बिहाइंड, वी ऑल नो दैट RBI as well as G20 announcements, due to G20 memorandums of understanding as well as the schemes, the approach of G20, they are trying their level best to improve the cross-border transactions. What I mean with the word improving the cross-border transactions, the first thing is reduce transaction cost, and second is increase the efficiency as well as reduce time of settlement और settlement time, reduce the settlement time. तो इसके लिए बहुत सारे initiatives लिए जा रहे हैं by RBI as well as by the other authorities. तो उसी को दिमाग में रखते हुए RBI has come up with a सर्वे. आरबीआई ने लॉन्च किया है सर्वे. अब इसको ये नहीं कि सर ये सर्वे पहली बार लॉन्च किया गया. नो, आई एम नॉट सेइंग दैट. दिस सर्वे is not launched for the very first time. This survey was basically launched back in 2006-7 पहली बार.
2006 2007 में लॉन्च हुआ था, एंड इट्स एन एनुअल सर्वे विच इज लॉन्च ऑन रेगुलर बेसिस. द सर्वे कलेक्ट्स कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑन क्रॉस बॉर्डर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंडियन एंड फॉरेन बैंक्स. इसका मतलब क्या सर, इस सर्वे का काम क्या है सर? इस सर्वे का काम है इंडियन बैंक्स as well as foreign banks से information collect करना, that what kind of services they have provided to the Indian residents in terms of sending the funds outside India. I'll write rest of the world, and what services they have provided to the rest of the world so that the rest of the world can send the funds back in India. Rest of the world can send the funds back in India. तो यहाँ पे ये जो role है, the role of Indian banks as well as foreign banks, both are going to be recorded. And how it's going to be recorded? Sir, RBI will ask these Indian banks as well as foreign banks to share the data, what kind of services they have provided in the past, so that RBI can understand what is the value, what is the volume of cross-border payment services, and how efficiently these services are provided by the Indian banks. So the data generated through this survey, it plays a very important role. Why it plays a very important role? Sir, it plays a very important role in measuring India's international trade in banking services and serve as an important input of compiling the country's balance of sheet payments as well as the external sector indicators. तो भैया इससे दो फायदे. पहला फायदा तो क्या होगा सर, ध्यान से सुनना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना. दिस पॉइंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये समझ आया तो अच्छा लगेगा आपको कि कुछ नई चीज सीखी. अब मान लो कि मैं आरबीआई हूं, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास इंडिया में बहुत सारे इंडियन बैंक्स हैं जो काम कर रहे हैं, एज वेल एज फॉरेन बैंक्स हैं which are operating, and these banks, they are operating within India. They are operating within India, है ना, हम सब जानते हैं, because they have their branches in India. सॉरी, थोड़ा अच्छा नहीं बना, ट्राई करता हूँ थोड़ा अच्छा बन जाए, काफ़ी दिन हो गए बनाए, प्लीज़ पार्डन में अगर आपको अच्छा ना लगे, बस समझाने के लिए. तो सर ये हो गया इंडियन बैंक विच आर ऑपरेटिंग इन इंडिया, foreign banks which are operating in India, as well as I'm talking about these Indian banks as well as foreign banks which have their branches in rest of the world as well. ठीक है. अब आरबीआई इनके पास गया, आरबीआई ने कहा कि भैया आप इंडिया में काम कर रहे हो, हाँ, उन्होंने कहा हाँ जी. आप इंडिया के बाहर भी काम कर रहे हो, उन्होंने कहा यस सर. तो उन्होंने कहा आरबीआई ने कहा उनको कि भैया मेरे पास अपनी रिपोर्ट दो. रिपोर्ट में आप क्या बताएंगे? एज एन इंडियन बैंक you will be sharing with me the data of funds which are sent by Indian residents to the rest of the world, yani outward remittance या outward flow of funds, as well as you have to share the data of funds which are sent from rest of the world to India. Funds which are sent from rest of the world to India. अब यहां से जो पैसा इंडिया के बाहर जा रहा है, so that could be possibly import bill, है ना, that could be possibly outward investment done by Indians, that could be possibly outward remittance, that could be possibly the profit earned by foreign companies operating in India, that could be possibly the funds which are paid as salary or wages to the foreign residents. हो सकता है ना. उसी तरह जो पैसा इनवर्ड आ रहा है, so that could be the export bills or export receipts, I would say. उसके साथ साथ सर दिस इज इनवर्ड इन्वेस्टमेंट, इनवर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. सर इट वुड बी इनवर्ड रेमिटेंस, इट वुड बी इनफ्लो ऑफ प्रॉफिट्स और सैलरीज और वेजेस, as well as it will include the grants as well as other financial aids. तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से देखें, what are all these? So these are the components of balance of payment. तो अगर मेरे पास ये डेटा है, if I am RBI and I have this data of individual banks and organizations which are operating in the country, so which means I am slowly creating the balance of payment. तो RBI जो balance of payment create करता है, उसमें this survey plays a really very important role. एक तो ये हो गया. दूसरा सर, इस डेटा से RBI try to understand what is the efficiency of cross-border payments in the country. What is the efficiency of cross-border payments in the
country. Are you getting my point, guys? Are you getting my point? If you're getting my point, just give me yes, sir. If you are getting my point, just give me yes, sir. समझ आया? Is it clear, everybody? Okay. Now let's move on. Let's read about the same. So, international trade in banking services, it's a survey, which is an annual statistical exercise conducted by RBI to capture the value of banking services exchanged between India and rest of the world. Unlike data on international capital flows or lending, this survey focuses on services provided by banks such as payment services, trade finance, foreign exchange transactions, advisory services, and other financial intermediary activities which are carried out. It measures the income earned from these services through fees, maybe commissions, as well as other explicit or implicit service charges which are charged. So the service covers the branches, the subsidiaries, the joint ventures of Indian banks operating abroad, that means operating outside India, as well as the branches and subsidiaries of foreign banks operating in India. Are you getting my point? भैया इसमें include किया जा रहा है Indian banks which are operating outside India as well as the foreign banks which are operating in India. So by collecting this information, both Indian and foreign banking entities, the survey provides comprehensive picture of international trade in the banking services. यानी bank services जो हैं, how much banking services we are providing in the sense कि हम कितनी services provide कर रहे हैं to the foreign nations और हम कितनी सर्विसेज यूटिलाइज कर रहे हैं फ्रॉम दी फॉरेन नेशंस. सो बोथ ऑफ देम और बोथ ऑफ द थिंग्स आर नीड टू बी अंडरस्टूड इन दिस. अब इसको थोड़े अलग एंगल से सोचते हैं. सर द सर्विस इट प्रोवाइड्स रिलायबल एस्टिमेट्स ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ बैंकिंग सर्विसेज. सर इससे ये भी पता चलता है कि इंडिया कितनी बैंकिंग सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा है और कितनी बैंकिंग सर्विसेज इंपोर्ट कर रहा है. सो इट इज हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड द करंट स्टेटस ऑफ द इंडियन बैंकिंग सर्विसेज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एज वेल. सो विच आर रिकॉर्डेड अंडर सर्विसेज अकाउंट ऑफ करंट अकाउंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट में वी हैव करंट अकाउंट, वी हैव कैपिटल अकाउंट. तो करंट अकाउंट में भी जो सर्विसेज अकाउंट है, उस सर्विसेज अकाउंट में जहां पे हम इन्फोसिस की सर्विसेज अकाउंट करते हैं, टीसीएस की सर्विसेज को अकाउंट करते हैं, इन अ सिमिलर वे वी आर अकाउंटिंग द बैंकिंग सर्विसेज एज वेल, दैट व्हाट वैल्यू ऑफ बैंकिंग सर्विसेज वी हैव एक्सपोर्टेड, व्हाट वैल्यू ऑफ बैंकिंग सर्विसेज वी हैव इंपोर्टेड. Got it? So RBI assesses the contribution of the banking sector to India's service sector and monitor the scale, which is important. अब इसमें coverage में सर overseas branches, subsidiaries and joint ventures established by Indian banks in foreign countries. At the same time, it also covers the branches and subsidiaries of foreign banks which are functioning within India. So Indian banks and foreign banks, as I said. So foreign banks which are operating in India and Indian banks which are operating outside India, they both are included while calculating the data. हम कितनी services import कर रहे हैं और हम कितनी services को export कर रहे हैं. This is something which we need to remember. अब इसमें क्या क्या activities को include किया जाता है? Sir, it include various activities such as deposit and lending services, trade finance, remittance services, payment and settlement services, foreign exchange transaction, custodial services, asset management, financial advisory services and whatnot. इसमें आपको याद रखना होगा, RBI has asked all the banks to submit the prescribed survey scheduled covering their international banking operations, and it is available. This survey is available in both English and Hindi, and bank has to fulfill the requirement, and the last date to submit this survey electronically is 31st July 2026. 31 जुलाई 2026 तक आपको भैया डेटा भर के देना होगा एज अ बैंक. आई होप आपको समझ आ गया होगा
कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसे और प्रिसाइज कर दूं तो यू टेक इट इन दिस मैनर, इंडियन बैंक्स ऑपरेटिंग आउटसाइड इंडिया, फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, इन्होंने जो सर्विसेज दी हैं, वी आर इंक्लूडिंग दो सर्विसेज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट एज वेल एज इंडियाज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ दीज बैंकिंग सर्विसेज। समझ आ गया? इज इट क्लियर? इफ इट इज क्लियर जस्ट गिव मी यस सर। If it is clear everybody, just give me yes sir so that I can move ahead. ठीक है जी, तो दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग, दिस सर्वे has been conducted annually since 2006-7, correct? The survey collects information on cross-border banking services based on explicit as well as implicit fees and commission charge. दोनों इंक्लूड किए जा रहे हैं, yes. The survey covers only overseas branches and subsidiaries of Indian banks and include foreign banks operating in India. That should be correct, लेकिन यहाँ exclude है तो ये गलत हो जाएगा. So answer to this particular question is 1 and 2 are correct, but the third statement is wrong. So answer is going to be the same, that is A option. ठीक है जी. Next question is going to be a homework. Quickly take the screenshot और उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा just after the class, and I'm pretty sure you are going to enjoy this. स्क्रीनशॉट ले लो and do give me the answers in the comment section. ठीक है. अब अगर आपको इस सेशन की PDF रिक्वायर्ड है, so that is available on our Telegram channel, ज्वाइन कर लो. If you're still planning to prepare for RBI Grade B 2027 exam and you're still thinking that whether I should start the preparation today or not, then my answer is today और नेवर इज द आंसर. आज करो या फिर कभी नहीं कर पाओगे, वरना फिर वही पिछले साल इस साल की तरह होगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले स्टार्ट नहीं किया, जब एकदम से नोटिफिकेशन आ गया, इट वाज रियली वेरी टफ फॉर देम टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. बट इस बार वो गलती मत करो. वी आर स्टार्टिंग आवर लाइव सेशंस for the new batch from 6th of July. So I request you to join the batch from 6th of July. Day 1 से इस batch को join करो, which is available at very minimal price. And we are providing you with the descriptive answer writing practice. We are providing you with live tests, live feedback for these descriptive answers. We are providing you with India's best faculty for especially the current affairs part, whether it is PIB, government schemes, ESI or finance or RBI circulars. तो अगर अभी भी सोच रहे हो तो सोचते रह जाओगे. So go for it. Most of you who have thought of preparing for IBPS PO or SBI PO, obviously I support your decision because that is much required. अगर आपको लग रहा है, क्योंकि एक बार आप अटेम्प्ट दे चुके हैं, you have already done with the syllabus, you know that after December if you start again for RBI you will be in the fight again. But if you are preparing for IBPS or SBI PO, और इस बार जो IBPS और SBI PO में बहुत क्लियरली नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया आरबीआई सर्कुलर्स, और लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस आरबीआई सर्कुलर से आए भी थे. सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज, आई एम थिंकिंग ऑफ हेल्पिंग यू गाइज फॉर दीज आरबीआई सर्कुलर्स. अब उसके लिए ऑब्वियसली आई वोंट बी डिस्कसिंग द आरबीआई सर्कुलर्स इन मच डिटेल द वे आई डू फॉर द रेगुलेटरी बॉडीज classes, but I will be discussing these RBI circulars up to a mark so that you can answer the questions for sure in IBPS and SBI PO exam. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत बार फीडबैक दिए कि सर RBI circulars फॉर बैंक एग्जाम्स पढ़ाया तो जाता है लेकिन समझ नहीं आता. लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से हम रेगुलेटरी बॉडीज के लिए सर्कुलर पढ़ते हैं, दैट इज मच क्लियर टू यू. सो आई एम प्लानिंग दैट आई शुड बी कमिंग अप विद अ सेशन ऑन वीकेंड्स. एक सेशन करूं, उस एक सेशन में पूरे वीक का जो सर्कुलर्स हैं उन्हें मैं उस लेवल तक पढ़ा दूं दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द बैंक एग्जाम्स. इफ यू थिंक दैट इट इज अ good thought, if you think that this is going to be a good suggestion, this is going to help you in your preparation, then do let me know in the comment section. अगर आप लोग कमेंट करेंगे और मुझे लगेगा कि आप लोगों के suggestions भी वही हैं जो मैं सोच रहा हूँ, then I will surely start this circular session every Sunday from the coming weekend itself. तो coming Sunday से यानी कि 5th of July से I'll start this weekly session till your examination. Even I'll come up with a marathon session before your mains exam. Agar you want that I should help you in this way, then do let me know. But I will be able to help you only with the RBI and SEBI circulars जो कि आपके एग्जाम में आएंगे. And I'm pretty sure you will be in a position to answer them. You will be able to answer the questions related to the same. अगर आपने वो न्यूज़, वो सर्कुलर उस तरीके से पढ़ा होगा जिस तरीके से हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है जी.
दो बातें हैं ना सौरभ, अगर हम एक नजर से देखें, सिर्फ ये देखें कि $209 बिलियन हो गया, तो ये तो अच्छी बात है कि हमारी लायबिलिटी कम हो गई। लेकिन अब ये जो हमारी लायबिलिटी कम हुई है, उसका पहला रीजन हमारी आउटवर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज है, विच इज अ गुड पॉइंट। लेकिन दूसरी तरफ जो फॉरेन डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है जिसकी वजह से लायबिलिटी कम हुई है, दैट इज नॉट प्रीटी गुड, बट ठीक है। उसकी वजह से मैं ये नहीं कहूंगा कि ओवरऑल आंसर गुड है या बैड है, बिकॉज ओवरऑल डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। लेकिन हाँ, अगर हम स्पेसिफिक बात करेंगे कि क्या ये फॉरेन डिसइन्वेस्टमेंट इज अ गुड कॉल, नो सर, ऑब्वियसली इट इज नॉट अ गुड कॉल। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो आई गेस द पॉइंट इज क्लियर। ठीक है जी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इफ यू थिंक दैट यस दिस इज गोइंग टू बी अ गुड initiative, because exam norm is here to handhold you so that you can clear your upcoming examination। and सब जानते हैं एक बार अगर इनमें से कोई एग्जाम निकल गया तो RBI will be a piece of cake, क्योंकि फिर उसे अटेम्प्ट करना, क्लियर करना काफी इजी होगा। यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि एटलीस्ट आई हैव अ जॉब नाउ, आई कैन गिव मोर देन 100% फॉर माई RBI एग्जाम। एंड टू हेल्प यू गाइज to reach to that position, and I can help you with the RBI circulars, I'm thinking कि I should come up with a session on weekly basis। अगर आपको लगे इसकी रिक्वायरमेंट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, विल कैच यू सून, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।